लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इन चीज़ों को और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी स्टार्ट ब्लेमिंग लक, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। याद रखिए, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब समस्या ही नहीं रहेगी आप ही नहीं रहोगे। इंटरेस्टिंगली हम लोग कितना अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें। They never believed in all these things. Our problem is with the leadership. We need a clean, honest leadership who puts the national interest above their own interest. BSF people at the border are taking money and letting people coming in. क्या सरकार को मालूम नहीं है? क्या पॉलिटिशियन को मालूम नहीं है? क्या हमारी कैबिनेट को मालूम नहीं है? तो बात यह है कि they are silent observers. 50% of parliamentarians, they have criminal records. The weakest criminal now becomes the strongest criminal because he got power. Tell me, is this democracy? Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. This video is going to be very empowering. In short, अगर मैं बोलूँ तो ये वीडियो आपकी गाइड है on how you can win. अगर आपको हिंट नहीं मिला है, let me introduce to the guest today. We have with us Mr. Shiv Kheda ji. He is an international best-selling author. He is an educator, a business consultant. सर के पास बहुत years का experience है, बहुत ज़्यादा expertise है. And the best part is कि सर सिर्फ खुद leadership के pinnacle तक नहीं पहुँचे हैं. He helps the world reach there. He helps the leader in you to come out and shine. Welcome on the show, sir. Thank you so much आपने time निकाला. Thank you. I'm grateful to you. Thanks It's for our coming. honor. Thank you. So this video we are going to talk a bit about sir's journey and of course के sir ने जो books लिखी हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी insights हैं, ऐसे कौन से highlights हैं और कौन सा pathway है जिससे कि आप अपने अंदर के leader को निकाल सकते हैं and a little bit of industry highlights as well. So can we get started, sir? Sure. Go ahead, Barisha. Sir, अभी तक you've had a lot of talks, you've had a lot of interviews. I've seen, many of them. And आपकी जो journey है overall, it even comes into the rags to riches stories and your struggles and your challenges. Kind of लोगों को कहीं ना कहीं पता है, but मेरे को उसके पीछे का perspective जानना है. So I know that when you were in your early 20s, the coal mines that you got, they were nationalized and you faced a lot of financial struggle during that time, but still, you reached this pinnacle from that part. I want to know कि at that stage, because 20s is a very confusing time, it's very young, what was your experience and your perspective, like a young Shiv Kheda's POV, कि वो struggles आपने अपनी life को hinder नहीं करने दी. In fact, you chose to build on them because that is going to inspire the youngsters today. I got married when I was 22 and a half or somewhere around there. Okay. In fact, many times people ask me, wasn't that a little too early to get married? Right. Now I tell them if I had a rewind button in my life, I'd probably get married 2 years earlier to the same lady. Oh, wow. Now why do I say that? Because after I got married, since the mines got nationalized, we were literally on the street. And thereafter, I tried my hands on 3 businesses with no money and I failed in all 3. I left India. And we went to Toronto initially, started life with a bucket in my hand, washing cars. But why I brought my wife's mention here is because she took up a job. Okay. And she was supporting at that time. And she was the anchor in a way that while she was working, I obviously wouldn't get a job anywhere, I'm not qualified. But gradually, that gave me the time and the spirit to go out and venture out myself. So she was holding the fort. Right. And because of that, I was able to go out and do gradually what I could do. And I'll share with you one more thing. हाँ जी. सिर्फ मेरी बात नहीं है. You will find most NRIs are successful people. Most NRIs. Okay. And most of them also have started from a scratch. And of course, I'm not counting the professionals who started from a good point in any way, like a doctor, lawyer, and so on. They started well. But people like me, there were also some people like that. But you'll find why most NRIs have done well is because somehow our Indian culture has taught our women folks one thing:
to stand by their spouses, to stand by. Right. And that standby is a big strength. At least you know your home front is safe. True. You are protected here. बिल्कुल. And that's why it gives you that courage to go out and take more risks and move forward. ये एक बहुत बड़ी वजह है. इस वजह से लोग इंडियंस बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बाहर जाके सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनका रिस्क टेकिंग की एबिलिटी बढ़ जाती है. Right. So that was a big factor. But yeah, starting from a scratch, washing cars, then दिन के टाइम में गाड़ियाँ साफ करता था, शाम को मैं घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था to supplement my income. And totally by accident I got into selling life insurance, which in my opinion was the best thing that ever happened to me in my life. Okay. अब मैं क्यों कहता हूँ इस वजह से, क्योंकि out of all selling a car, a home or clothes or something is very different. Selling life insurance is considered to be one of the toughest sales in the world. Reason क्या है? हाँ जी. देखिए, आप गाड़ी बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, मकान बेचते हो, you can touch and feel and touch and feel and touch and feel. True. But selling life insurance, what is it? It's only a concept. There's nothing to touch and feel. आप खाली एक बात कह रहे हो कि अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो आपके परिवार को या आपको ये मिलेगा. इन दैट्स इट. नाउ यू आर पुटिंग एंड लिविंग इन द फ्यूचर. दैट्स अबाउट इट. सो इस वजह से इट्स अ वेरी टफ सेल. एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि दीज कंपनीज हायर 100 पीपल एंड विद इन लेस देन 1 year 90% पीपल लीव. Because They you leave can't the put industry. sales. They can't survive. 90%. So attrition is very high. Right. तो that means मेरे को 10 presentations करनी होती थी या 15 करनी होती थी to make one sale. अगर मान लीजिए 10 presentation करता हूँ, means 9 people rejected me. 9 लोगों ने मुझे कह दिया कि साहब मैं नहीं लेना चाहता आपसे. 9 rejections to make one sale. और तकरीबन होता क्या है कि most people take rejections personally True. and they get demotivated बिल्कुल. and they quit. And that is what taught me how to lose and how to fail, how to accept rejection. आज दुख की बात यह है कि तकरीबन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को 2 ही चीज सिखाते हैं कि हाउ टू सक्सीड एंड हाउ टू विन. हाउ टू सक्सीड एंड हाउ टू विन, यही सिखाते हैं बच्चों को. सक्सीड एंड विन, 2 words. बट जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है. Right. नीचे भी आती है. बिल्कुल. बट माँ बाप ने या टीचर्स, स्कूल ने, किसी ने नहीं सिखाया उनको. और जब फेलियर आती है, which is reality, they don't know how to handle it. They go into deep depressions, they commit suicide. Right. There are so major problems, so many things. And that is the big thing. तो सबसे बड़ी चीज ये है. और लाइफ इंश्योरेंस भी जब मैं बेचने लगा, within 3 months my manager called me to fire me for non-performance. Within 3 months. तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया मेरे को थोड़ा सा मौका दो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी एकेडमिक्स क्या है, आई एम अ BCom 3rd division failed in my 10th, दैट्स माई एकेडमिक्स. तो मैं क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आई हैव अ हैंडीकैप, हाउ डू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी. तो उस दिन मेरे मैनेजर ने मेरे से बहुत कड़क के बात की. एंड ही सेड टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी, यू शट अप एंड लिसन टू मी. मेरे को कहता है कि यू डोंट हैव अ हैंडीकैप, यू हैव अ बैड एटीट्यूड. तुम्हारा नजरिया खराब है, यू हैव बैड एटीट्यूड. और मेरे को कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बर्बाद करते, बल्कि अपने परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो. तो मेरे को कहता है, जानते हो हु हैज अ हैंडीकैप? कहता है जो पढ़े लिखे होते हैं ना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दे हैव हैंडीकैप्स. तो मैंने कहा ये तो सुना नहीं मैंने कभी. उनको हैंडीकैप कैसे होता है? कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाकर देख लो, they all have chosen their field, they are stuck. उन लोगों ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, वो फंसे पड़े हैं वहां पर. This is generally true. True. They narrow it down. Yeah, and exceptions are different. तो मेरे को कहता है तुमने अपना फील्ड चुना ही नहीं है. देखो, the world is open to you. The world is open to you.
तो मैंने कहा भैया मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। तो मेरे को कहता है नाउ दैट यू आर फायर्ड यू हैव ऑल द टाइम टू थिंक, सर लीव माय ऑफिस। तो मैं उनके दफ्तर से निकला, मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस शाम को वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ओके। तो मैं उनके प्रोग्राम में चला गया। आई पेड $39 व्हिच आई डिडंट हैव। डॉक्टर पील आए, वहाँ पर 1000 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो नज़र घुमा के देखा तो बोले कि लगता है आप लोग सब शांत बैठे हो, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं किसी को कोई समस्या है क्या, तो किसको नहीं है, तो हर एक को समस्या होती है। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील ने बोला कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था 200 गज दूर मैंने एक जगह देखी, वहाँ पे कुछ लोग एकदम रिलैक्स्ड पड़े थे, वहाँ पर उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते कौन सी जगह है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहाँ से एक शमशान घाट है। ओह माय गॉड। और वहां पे लोग एकदम लेटे पड़े हैं, रिलैक्स्ड, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। Nobody. तो कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, सबने हाथ जेब में डाल दिया। तो डॉक्टर पील ने बोला उस दिन कि याद रखिए समस्या एक जीवन का प्रतीक है। भैया जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, बिल्कुल। जब समस्या ही नहीं रहेगी आप ही नहीं रहोगे, और जब समस्या कम होने लगे तो घंटी बजने वाली है लग तो। तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से जिंदगी का एक निचोड़ है। ओके। आई डोंट लीव माई होम विदाउट द प्रेयर। एंड बहुत सी मुझे मुश्किलातें भी आई, एंड दिस प्रेयर हैज हेल्प मी टू ओवरकम देम। प्रेयर ऐसे जाती है, पहले मैं एक इंग्लिश में बोलूंगा, देन आई डू इट इन हिंदी। श्योर। इट इज कॉल्ड द सेरेनिटी प्रेयर, ओके। which says, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I Can't. cannot. Very beautiful. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, बिल्कुल। और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इस प्रार्थना को एनालाइज कीजिए, जस्ट बाइफरकेट इट, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, जिंदगी में क्या हर चीज हम बदल सकते हैं? क्या हर चीज को हम तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के कैन वी मेक इट टू आवर कन्वीनियंस? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जैसे कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहाँ पैदा हुआ मेरा फैसला नहीं था। मेरा कद क्या है, जिस्म का रंग क्या है, ये मेरा फैसला नहीं है। और कई लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी पैदा हो जाते हैं। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं। व्हाट रॉन्ग डिड दे डू? वी डोंट नो। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। क्योंकि बहुत बारी हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं। वी बिकम पैरालाइज्ड, वी बिकम अनप्रोडक्टिव। राइट। तो जो मैं बदल नहीं सकता, लेट मी एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली, नॉट ग्रजिंगली। और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दो, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेयर। नहीं बदल सकता। अब जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, और फिर ये लिखी लिव व्हाइल यू आर अलाइव, जो कि अभी 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई है, राइट। तो इसी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। तो मैंने उसमें लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इन दोनों बातों में टकराव है, लेकिन है नहीं।
ना जिंदगी एक फैसला कैसे है? अब देखिए, मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मुझसे मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। ट्रू, ठीक, बिल्कुल। और मैं अगर झूठ बोलता हूं, इफ आई टेल लाइज, आई हैव chosen to lose my credibility, haven't I? Right. मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए अगर झूठ बोलता हूं तो। See, life is full of choices. It is. Now, the next sentence is very important. We are all free to the point of choice, but after we make our choices, the choice controls the chooser. We have no more choice. हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है, अब फैसला हम पे काबू पा लेता है। So please explain. सी, हम अगर फैसला ले लेते हैं उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला ले चुके। नाउ द कॉन्सिक्वेंस कम इन, वॉट एवर डिसीजन वी हैव मेड, अब तो उसी के साथ जीना है हमारे को। Right. और जिंदगी एक समझौता कैसे है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। हाउ वी प्ले द गेम, Right. ओके, Again, what we can and what we can't control. राइट। तो अक्सर मेरे साथ स्पेशली प्रेस वाले पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? इसका जवाब है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, Okay. बट याद रखिए कभी कभार गलती करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ, अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही फेल हुआ है। बिल्कुल। और सिमिलरली आप अच्छे काम कभी कभार करने से कोई सफल नहीं होता, अपने अच्छे काम को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो इसके बाद हमने लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, and important thing is series of positive choices in life is called success and series of negative choices in life is called Failure. And that's very simple. That's So- a very beautiful way to put it, because लोग बहुत complicate कर देते हैं इन चीज़ों को, और फिर at the end of the day, you know, we start blaming luck, we start blaming a lot of other factors. We don't understand the basics that you've just cleared. That's right. That's right. And important thing is क्योंकि आपने किस्मत की बात की, लक की बात करी, तो दिस हैज बिकम अ बिग इशू। एक सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे को हिंदुस्तान में हम लोग को पहुंचाया है हैज बीन डन बाय आवर मीडिया। मैं किस वजह से कह रहा हूं ये? क्योंकि आप कोई भी टेलीविजन चैनल देखिए और इवन प्रिंट मीडिया फॉर दैट मैटर देखिए, पहली चीज टीवी चैनल खोलेंगे क्या दिखेंगे? वहां पर एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हाँ हॉरोस्कोप लेके बैठे हैं। Starts at 6 in the morning. हाँ, और नहीं लेट राइट तक चलता रहता है यही से हॉरोस्कोप। Right. और वो गुरुजी आपसे पूछ रहे हैं नाम बताओ, जन्म तिथि बताओ, कहाँ से बोल रहे हो बताओ, कहाँ जन्म हुआ वो बताओ, और जन्म टाइम बताओ। तो आप बहुत बारी लोग कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो गुरुजी वहाँ पर बैठे हैं एक लैपटॉप लगा के, तो लैपटॉप लगा के टिक 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 कर लगा के बोलेंगे। तो अब इमीडिएटली उनको सब निकल गया वहाँ पर, तो फिर बोलते हैं बेटा दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवे के घर में बैठा है, अब तो समस्या होगी। अरे भैया दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी। अब फिर बोलते हैं मंगलिक हो गया फिर, और फिर शनि चढ़ गया। अब वो डर रहा है, डर गया सब। वो अब क्या बोले, शनि को उतारने का उपाय क्या है? तो उतारने का उपाय ये है कि एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो,
काला काजल लगाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो, उसमें दूध पिलाओ, वो काला काला ये खोजते रहे, काले खोरे खोजते रहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे आप एक बात बताओ, शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि शनि परमानेंट इंडिया में क्यों रहता है? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, अमेरिका नहीं, बैठा यहीं पे बैठा है शनि। ट्रू, थिंक अबाउट इट। राइट। मैं ये किस वजह से बात कह रहा हूं कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, दे नेवर बिलीव्ड इन ऑल दीज थिंग्स। Right. और नॉट ओनली दैट, बल्कि दे फॉट अगेंस्ट इट। ट्रू। आप देखो, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकालते शादी का, बिल्कुल। कोई पत्रियां नहीं मिलाते। हाउ कम? दे फॉट अगेंस्ट इट। हर सिख परिवार में शादी संडे को होती है, संडे को सूट नहीं करता सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता फ्राइडे को कर देते हैं। यू नो समथिंग, ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जो आ गया हम लोग के अंदर, ये हमारे को गिराता है, बिल्कुल, कमजोर बनाता है। इट क्रिएट्स फियर। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने एक आदमी को देखा, उसने नग पहनते हैं आजकल, अंगूठियां पहनाते हैं आपको, नक्षत्र। तो मैंने एक आदमी को देखा, उसके पास 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनी थी, और कोई उंगली में 2-2 भी थी। तो मैंने उसको पूछा, 10 नीचे भी पहनी है क्या? व्हाट इज दिस? एंड इंटरेस्टिंगली, हम लोग कितना अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। लुक, मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? कहता साहब अब रोक देता हूँ गाड़ी, अगर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा फ्लाइट में जाएगा तो नुकसान तो हो ही जाएगा मेरा। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा? बोले उसकी, दैट इज हिज प्रॉब्लम। यू सी, एज इफ ही हैड ऑल द आंसर्स, उसको सब जवाब मालूम थे। तो मैंने उसको एक बात पूछी कि मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली अगर निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता, इन दैट केस आप ही की गाड़ी पहली होती, फिर क्या होता? जवाब सुनो साहब उसका। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है, बिल्ली की पावर कम हो जाती है। और आप हंस रहे हो, जानते हो पढ़े लिखे PhD MBA ये कुछ कर रहे हैं। This is exactly what they are doing. That's weird. That is sad but weird. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। There's an article that came out in India today, January 2018 issue, which said astrology and superstition. और उसमें खास तौर पे लिखा हुआ था कि because of superstition, इंडिया में natural childbirth has gone down by 80% in many places, 80%. And they especially quoted South India, Bangalore, Hyderabad, Madras. Natural childbirth has gone down by 80%, 80. That's a lot. What is it? Why? You know what? Because they went to some astrologer and the astrologer said, this is the time to pull out the kid. So they did surgery and pulled out the kid. Because some Jyotishi astrology said that. This is what we have become now. Look at this. And दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जो आज मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, they go there to those places more out of fear than out of faith. True. क्योंकि किसी ने बोल दिया ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा. This is what it is. You know something? Spirituality should make a person strong, not weak. Exactly. And this is weakening the people here. Right. You're constantly carrying the negative energy in your mind and That's around right. yourself. That's right. देखिए जिंदगी में
जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। बिल्कुल, गुरबानी कहती है सर, नानक दुखिया सब संसार, संसार। there's nobody without problems. दैट्स राइट। बट इंटरेस्टिंगली, जिसने जिंदगी में कहीं जाना है, जब जिंदगी में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दे आस्क ए क्वेश्चन, दे एनालाइज एंड दे आस्क, अगर यही समस्या मेरे को दोबारा आ जाए तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जो मैंने किया था? इफ द आंसर इज यस, मीन्स यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। Right. Yeah? But then they analyze and they say, what would I do differently? अगर यही समस्या दोबारा से आती है, they learn from it, they don't repeat the mistakes. Right. But जिसने जिंदगी में कहीं जाना नहीं है, वो क्या कहता है जब समस्या आती है, जानते हो? वो कहता है, नक्षत्र मेरा साथ नहीं दे रहे, my stars are not favoring me. वो कभी सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा, और वही गलती को दोहराते चले जाएगा और फिर कहेगा मेरी किस्मत खराब है। Sadly, this is what is. People have become fatalistic. भाग्य में लिखा है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। ऐसे लोग भाग्यवादी हो जाते हैं। भाग्यवादी लोग कुछ करके नहीं जाते, कुछ होने का इंतजार करते हैं। और आप देखो, बहुत से अखबारों में छोटे छोटे इतने इतने पैम्फलेट फ्लायर निकल रहे हैं, स्वामी जी, गुरु जी, फलाना ये आ गया, आपको शादी नहीं हो रही है, पड़ोसी के साथ समस्या हो रही है, पास नहीं हो रहे, बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, कोर्ट कचहरी में केस लगा हुआ है, 151 रुपये दी भेजो और 24 घंटे में रिजल्ट लो। Right, that's into tech also now. Gone are the days of print media. That's into tech also now. Right. Get your results in 24 hours. What a joke. What a joke. True. And not only that, but there are many so-called motivational speakers have also come up. वो आपको करते हैं अपना टेलीविजन पे, यूट्यूब पे मैंने देखा है, वो आपको बोलेंगे कि यू वांट टू लूज 25 पाउंड्स ऑफ वेट इन 30 डेज विदाउट डाइटिंग, विदाउट एक्सरसाइजिंग, गिव मी $99 और 99 रुपीज भेजो, 99, आपका 25 किलो वजन नीचे निकल जाएगा। व्हाट इज इट? Nobody is focusing on the karma that you actually have to put in, be it in any aspect. या आप ये नहीं, यहां तक कहते हैं कि easy to lose weight 25 pounds or 25 kilos in 30 days without exercise, without dieting. अब कहता है सब बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइटिंग के मेरा वेट लूज हो गया, 99 रुपीज दे दो, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो 10 दिन में MBA डिग्री बेच रहा है, एक आदमी बेच रहा है, MBA की डिग्री बेच रहा है यहाँ पर, हो उसके ऊपर कई केस हो गए। ऐसे लोग भी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। So there are so many frauds right there going on. But I guess this has become the culture, sadly. Same thing you find in politics, same thing you find in legal profession, same thing you find in the medical profession, sadly. बल्कि अगर आप आज यहां से ना एक ही चीज ले जाओ आप, जरूरी चीज ये है, क्योंकि I was addressing about 1,000 doctors a while ago. Okay. It was a alumni meet. तो मेरे पहले एक बहुत बड़े नीति आयोग के ऑफिसर एड्रेस कर रहे थे, तो बोले बहुत कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे कि हमारी GDP इतनी बढ़ रही है, फलाना बढ़ रहा है, हमने इतने लाख करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट में लगा दिया, सो देन इट वॉज माई टर्न टू एड्रेस। तो मेरे को उन्होंने बुलाया, तो मैंने एक्नॉलेज किया उनको सर्टनली कि साहब GDP बढ़ना अच्छी चीज़ है और बढ़नी भी चाहिए, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। लेकिन मैंने एक बात कही कि मैंने कहा साहब आप एडवाइजरी में हो, आप एडवाइस करते हो प्रधानमंत्री को, नीति आयोग इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, तो मैंने कहा साहब एक संदेश आज जरूर ले जाओ आप प्रधानमंत्री जी को, वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या देश इज नॉट बिल्ट ऑन स्किल्स, इट इज बिल्ट ऑन कैरेक्टर। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि इफ यू हैव अ स्किलफुल डॉक्टर हु लैक्स कैरेक्टर, they will do useless surgeries, useless procedures. To them, a sick person is not a patient but a target. Right. To a skillful lawyer who lacks character, a matter that can be resolved in 5 hearings will take 500 hearings.
To a skillful judge who lacks character will give judgments no justice. Right. To a skillful civil servant who lacks character will himself become a mafia. रावण तो बहुत ज्ञानी था. He was very knowledgeable, but he lacked what? Character. He lacked character. तो मैंने कहा साहब अपनी जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, कंप्यूटर, अंग्रेजी, अलजेब्रा सब पढ़ा रहे हो, जो चरित्र निर्माण है वो नहीं हो रहा है. तो आप खाली रावण पैदा कर रहे हो स्कूलों में और कुछ नहीं कर रहे. We're not focusing on the morals and values, and particularly with the times changing, parents जहाँ पे almost दोनों parents working होते हैं, बच्चों के साथ हम वो time नहीं spend कर रहे हैं, schools में वो subjects खत्म हो गए हैं. In fact, I'd like कि अगर आप थोड़ा सा इस पे और develop करें, because particularly for the educators and parents, हम ये gap कैसे bridge कर सकते हैं sir? How can we still ensure that that right character and attitude is built, because that's the foundation of the nation. देखो एक बात बताऊं आपको, कहीं पर भी सभ्यता जो होती है ना, it starts from the top. It doesn't go bottom up, it always comes from the top. आप देखें किसी परिवार में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर सीईओ या फाउंडर वो बेईमान है, तो आप चाहे जितने मर्जी मॉरल साइंस की सब्जेक्ट्स लगवा दो, आप वो जितने स्टूडेंट निकलेंगे वो सारे बेईमान ही निकलेंगे. स्कूल का प्रिंसिपल पैसे लेके एडमिशन कर रहा है, अगर वहां पे ये है आप जितनी मर्जी मॉरल साइंस की किताबें लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है. सो वी हैव टू, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सो वी हैव टू रियलाइज आवर प्रॉब्लम इज विद द लीडरशिप. वी नीड ए क्लीन ऑनेस्ट लीडरशिप who puts the national interest above their own interest. Right. आपको एक उदाहरण देता हूं. हमारे यहाँ पे एक आदमी डिनर के लिए आए तो लेट हो गया, तो हमने पूछा लेट क्यों हो गए. कहता रास्ते में पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया. तो मैंने कहा क्या हुआ. तो कहता है कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो मैंने उसको पूछा कि भैया मुझे रोका क्यों, मैंने क्या गलती करी बताओ. तो उस पुलिस वाला सोच रहा था, कहता सर 100 रुपये दे दो मैं छोड़ देता हूँ, काम के बेकार टाइम खराब कर रहे हो आप. तो ये पूछता है उससे, पुलिस वाले से, कि भैया तुमको 100 रुपये किस बात के दे दूं. हियर व्हाट द आंसर इज फ्रॉम द कॉप. पुलिस वाला कहता है साहब हमारा मंत्री सिरी लाने के 100 करोड़ ले लेता, मैं तो सड़क पे खड़ा हूं तो 100 रुपये मांग रहा हूं. Oh my God. मंत्री एक बारी सिरी लाता है तो 100 करोड़ हो जाता है, 2 बारी लेता तो 200 करोड़ हो जाता है, मैं तो फिर भी सड़क पे खड़ा हूं. लुक एट दिस, लुक एट द मैन व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग. Right. एंड क्या वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है. अब छोटी सी अखबारों में निकलता है, जज पकड़ा गया कितने पैसे के साथ, उसका क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया. दिस इज इट. आप 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे इस देश में घुस के आ गए, नॉट अ बुलेट हैज बीन फायर्ड. कैसे आ गए? देयर वाज एन आर्टिकल दैट BSF people at the border are taking money and letting people coming in. You tell me, this is called committing suicide. Now you tell me, क्या आपको मालूम है, मुझे मालूम है, 10 करोड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आके, क्या सरकार को मालूम नहीं है, क्या पॉलिटिशियन को मालूम नहीं है, क्या हमारी कैबिनेट को मालूम नहीं है, क्या किसको मालूम नहीं है क्या? What are they doing about it? So point is that they are observers, they are not doing anything about it. तो बात ये है कि they are silent observers. देखिए जो लोग गलत को देख के चुप रहते हैं वो भी तो गद्दारी है ना. सी 2 किस्म के गद्दार होते हैं. एक होता है एक्टिव ट्रेटर जो एक्टिवली अपनी माँ को बेचता है खड़े होके, और दूसरा एक पैसिव गद्दार होता है जो अपनी माँ को बिकते हुए देखता है और चुप रहता है. So we have to understand where we are. Right. So we need to get to the root cause. So the remedy is that we need to get good people in the parliament. आप कोई भी अखबार निकाल लो पुरानी वाली, 50% of parliamentarians they have criminal records. Right. And as high as rapes and murders and things like that. 50%. तो आप बताइए क्या, what can you expect? Are you expecting good laws from those people? Answer is no. इसी वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में I filed a PIL in the Supreme Court to fight this. You can't be a spectator. Right. And that is why I filed a petition for making a law out of nota. Nota means none of the above. Right.
मैंने नोटा का क्यों एप्लीकेशन फाइल की, इस वजह से, एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट नोटा मीन्स। 20 साल पहले मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, वो भी मेरी थी एप्लीकेशन नोटा की, तो उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि नोटा शुड बी एन ऑप्शन ऑन द बैलेट पेपर। ओके। बट इंटेलेक्चुअल जो जुडिशरी है, इट इज ए यूजलेस टूथलेस काइंड ऑफ अ जजमेंट। तो आज नोटा लग गया, नोटा अगर जीत भी जाता है तो इट इज यूजलेस। मान लीजिए 90% वोट गोज टू नोटा एंड 5% गोज टू समबडी एल्स, नोटा इज यूजलेस, इट दे विन, 5% विंस। आज की जो स्थिति है, हालात है, वो ये है कि तकरीबन लोग 50-60% वोटिंग होती है। तो वोटिंग ज्यादा क्यों नहीं होती इससे? क्योंकि एक वोटर जो है उसके दिमाग में रहता है कि साहब किसको जाके वोट दूं, दे आर ऑल अच्छे कैंडिडेट कोई नहीं है, कोई क्रिमिनल है, कोई फलाना है, ये है वो है, किसको जाके वोट दूं? ये दुविधा है उसको, ही इज इन ए डिलेमा। राइट। बट इफ ही डजंट गो टू वोट, ही इज नॉट अ गुड सिटीजन। तो कहते हैं आप अच्छे नागरिक नहीं हो। तो व्हाट डज ही डू? सो ही गोज देयर एंड वोट्स फॉर, either he votes for caste or he votes for the weakest criminal. Now the weakest criminal, one, now he's got power. The weakest criminal now becomes the strongest criminal because he's got power. Tell me, is this democracy? Did you want him to win? Does he represent you? This is the biggest joke on democracy. तो हमने कहा है कि नोटा should be treated as a candidate. और अगर नोटा जीतता है, इन दैट केस ऑल दीज कैंडिडेट्स शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दैट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दैट वन इलेक्शन एंड वन अपकमिंग इलेक्शन ऑल्सो। एंड देन व्हाट विल बी द एडवांटेज? इट विल डू टू थिंग्स। वन, it will open the doors for new people to come in and good people to come in, one. And number two, it will force the political parties to field good candidates because they know they have a consequence. There is a consequence they could lose. Right. आज की तारीख में क्या होता है कि the political party knows the candidate is not a good candidate, maybe is a criminal, and the whole constituent, सारे वोटरों को मालूम है क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसी को जिता देते हैं। फिर जानते हो क्या कहते हैं? आपने तो वोट करके मुझे जिताया, जट आपको नहीं किया था वोट। द सिस्टम इज सो मेस्ड अप, एंड हु इज क्रिएटिंग द सिस्टम? दे क्रिएट द सिस्टम ऑन पर्पस टू क्रिएट लाइक दिस। यू नो व्हाई? जो बेईमान आदमी है इज नेवर पिक्ड अप, नेवर फाउंड आउट। इन अ क्लीन सिस्टम, ए करप्ट पर्सन विल बी पिक्ड अप इमीडिएटली। राइट। पकड़ा जाएगा वो। बट जहां हर जगह chaos है, chaos रहेगा। That's right. जो बेईमान आदमी है वो निकल जाता है बेईमानी के साथ। तो आज का सिस्टम, इवन द जुडिशरी सिस्टम ये हो गया है, इट पेनलाइजेस द ऑनेस्ट पर्सन। जो ईमानदार आदमी है वो अपनी जुडिशरी से डरता है, बेईमान है इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डिसऑनेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दिस? I mean, you just look at the judge who was caught with so much money right now, recently. What is the penalty? Transfer कर दो यहाँ से इलाहाबाद कोर्ट भेज दो। Maybe go and take money from somewhere else. God knows. But just look at what we are talking about. Right. So there are multiple issues. Look, there are remedies also. Provided we want to do it, we need to have the political will. Same thing. Why you go that far? ये वक्फ बोर्ड एक्ट now has become a big issue. वक्फ बोर्ड, tell me, 10 साल बीजेपी पावर में थी, 10 साल पावर में थी. They had full majority. Right. Just like Article 370 has been abrogated, they could have abrogated the Waqf Board Act also. Why didn't they do it? Now they're talking about all these things. Why? What happened? Maybe they need hot topics every now No, and then. no. This is where, this is literally treachery with the country. This is literally treachery with the nation. आप दूर क्यों जाते हो? इसी अब अभी नया नारा निकला है ना, बटोगे कटोगे बटोगे कटोगे. What is, you tell me one thing, बटोगे कटोगे जिन्होंने नारा निकाला है, बांट कौन रहे हैं? वही तो बांट रहे हैं. इसी BJP themselves have divided the whole society within us, between the Hindus also.
Why? How? Go back. In 1999, the election was due in Rajasthan, Okay. and the Prime Minister was अटल बिहारी वाजपेयी जी थे. Okay. वाजपेयी जी गए राजस्थान और उन्होंने वहां पे जाके जाट्स को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया. लुक एट दिस. नाउ जाट कहां से बैकवर्ड हो गए, कैसे बैकवर्ड हो गए, सबका दिमाग हिल गया. जाट कैसे बैकवर्ड हो गए? उसके बाद वहां भी दिक्कत हो गई. फिर हरियाणा में भी कहते हैं हमको भी बैकवर्ड करो, फिर यूपी में भी, अब दिल्ली में लास्ट इलेक्शन में कहते थे यहां भी जाटों को रिजर्वेशन कर दो. वेयर डू यू स्टॉप? Why don't you make खेड़ा backward? Why don't you make everybody backward? मित्तल को, गोयल को, सबको backward कर दो आप. What is this? क्या किया उन लोगों ने, वाजपेयी जी ने? वहां पर इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया. True. इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया. Is this what it is? Is this what patriotism is all about? क्या यही कुछ सिखाया है देशभक्ति को? बताइए. ऐसी decisions they go for generations together. Right. What is it? So it is sad. These are all power-hungry people, and for which they are betraying the country and saddened. That's what can we do about it? Well, that's why I filed nota. That's why I filed nota. And now we need to make nota as a movement. इसका मतलब क्या है कि मैं तो सारे देश की जनता को यही कहूंगा कि भैया उसी कैंडिडेट को जाके वोट देना जिसकी उनकी पार्टी में, और उस कैंडिडेट कहता है कि नोटा को सपोर्ट करो और नोटा को कानून बनाओ, तब उसको दीजिएगा वोट, नहीं तो मत दीजिएगा उसको वोट. दैट्स ऑल. यू हैव टू मेक इट दैट वे. मत जिताइए इस आदमी को. Somewhere down the line we have to take that initiative, and that's what I would like you to maybe share. I think I would talk from what I've observed from myself, from my peers, हमारी generation खासकर maybe 4-5 years elders or younger to me. We people are not that active also into politics, and somewhere down the line that is also a reason we feel कि आप abroad चले जाओ, आप अपनी education उस level की कर लो, और you become a part of that category of the nation कि आपको शायद इन problem से फर्क ना पड़े, maybe through your wealth, your power, your influence, anything. But down the line, we are not focused on the root, as you said, and that's breaking the nation. Right. Can we as youngsters do something that can actually, solve that problem? Maybe आज नहीं, 5 साल नहीं, but 10-15 years down the lane from consistent efforts, can we make India better for ourselves so that we don't look outside India? We have everything here. Because resources हैं, land है, natural resources है, सब कुछ है. अगर नहीं है तो हमें लगता है अगेन कि जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, और ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं which culminate and then they force us के maybe we can find a better life elsewhere. Let me share with you, there were 2 surveys done. One was our youth, which said about 60% of our youth wants to leave India. Right. They can get out. One. And many they don't come back either. एक और अभी in the last 8 weeks there was another article, I think in TOI we saw that, that many Indians are leaving India permanently, and anybody who has wealth in excess of 25 crores, majority people have decided to move out. अब जो पैसे वाला यहाँ देश छोड़ के जाता है तो पैसा साथ लेके जाता है, छोड़ के नहीं जाता पैसा यहाँ पर, बिल्कुल वो साथ लेके जाएगा पैसा. Now you tell me one thing, has anybody made a concerted effort to figure out कि जो पैसे वाले हैं यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं और पैसा लेके जा रहे हैं? It is creating unemployment, creating so many other problems. Right. See, we are overpopulated. We should also have a population law in India to stop the growth of population here. We are 150 crores. Maybe officially, actually, we may be 160, 100, even 70 crores. Right. इसी 135 करोड़ के तो आधार कार्ड हैं, 15 करोड़ तो जो अननोटिस्ड हैं, जो पता नहीं है, तो 150 तो यही हो गया. और उसके अलावा जो 10-15 करोड़ आए हुए हैं इधर उधर से, बांग्लादेशी रोहिंग्यास, they are here. So our numbers are hitting 160. But
we need to contain our population also. ये 10 करोड़ आदमी को वापस भेजना चाहिए यहाँ से. And we should also have a law that if you have more than 2 children, your voting right should be taken away. आपका voting right निकलना चाहिए यहाँ से. For the parents. See, we have only 2% of the world's drinking water, only 4% of the agricultural land, but we have almost 20% of the world's population. You see, major challenges everywhere are happening: pollution, crime, ill health, malnutrition, deforestation. Everything is related to population, resources, train jams, everywhere, schooling, college, medical problems, everywhere. It is all coming back to the resources and what you need here. Population है नहीं, कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पर बैठे हैं आराम से लोग, which is unfortunate. But yes, your question, let me answer that. Should the younger generation get involved? Do they have an obligation? Answer is yes. They have an obligation. And they can't just be selfish that मेरे को मौका है, आज मैं बाहर चला जाता हूँ. मैं भी गया हूँ 45 साल पहले, लेकिन मैं यहाँ पे आके अपना ऑफिस खोला है. आई एम पुटिंग इट बैक. एंड मेरे जैसे बहुत से और भी इंडियंस हैं जो बाहर गए, सीख के पढ़ लिख के आए, और यहाँ दे आर सर्विंग इंडिया. They are actually serving India, and had they not gone outside, they would never have been able to serve the country here. True. So those are important things. But yes, we need to understand two things. Who do we owe loyalties to? क्या मेरी लॉयल्टी अमेरिका के साथ है क्योंकि मैं वहां पर 45 साल से हूं, या मेरी लॉयल्टी इंडिया के साथ है? देखिए, इंडिया के साथ मेरी लॉयल्टी है बिकॉज दिस इज द कंट्री ऑफ माई ओरिजिन, माई मदर्स ओरिजिन, माई फादर्स ओरिजिन, एंड माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स. आई ओ लॉयल्टी बिकॉज माई कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया. बट I do owe loyalty to my country of adoption. That is my country of adoption. Now, who adopted who? Did I adopt them or they adopted me? I mean, if they had rejected me, I would have been out. Right. But I went there. वहाँ पे भी मुझे मौका मिला पढ़ाई करने का, सीखने का, बहुत कुछ सीखने का मिला. अगर वो सीखता नहीं तो शायद आज भी मैं गाड़ियाँ साफ कर रहा होता. तो बात ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, yes, we owe loyalty to our country. We need to come back and serve and do the right thing. And especially यहाँ पे बहुत से लोग हैं, साहब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जो होता है, मैं तो I don't get into politics. इसलिए, और फिर जानते हो क्या कहते हैं, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ. कैसा, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ आदमी है. भैया, आप सोशल वर्क जो है को पॉलिटिक्स से अलग कैसे कर सकते हो? इसी जो पानी हम पीते हैं इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स. ये सांस हम लेते हैं इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स. जो एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलती है इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स. हाउ कैन यू सेपरेट देम? यू कांट. एंड पीपल हु जस्ट only sit there, eat that stuff and never want to get involved in anything else other than that, in my opinion, उनकी तो सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए यहाँ से. यू आर ओनली टेकर्स. यू आर अ पैरासाइट. खून चूसते हैं खाली, देते कुछ नहीं है वापस. एंड दैट्स व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट. So we need to understand what the whole thing is. Right. And that's very important for youngsters. I think this should be one of the key takeaways. A lot of population, again, shayad because of the problems, we've become a no opinion category. कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, और we don't want to have a say, and we're just looking out for ways which can serve us and our family or just our proximity people. But we can actually save India if we want to. I know it will take effort, it will take time, but you have to choose अगर आप वो करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, right? And even for the people who don't want to get into politics, I was that kind of a person, to be honest, some time back, until I realized how deeply embedded politics is in our lives. हम चाहें या ना चाहें, it has an impact on us, and that's why it is important for us to have a say in that.
And thank not only that, sorry to no interrupt. problem. Not only that, अभी मैंने एक वीडियो बना के भेजी थी एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर. Okay. एंड अभी जो कश्मीर में पहलगाम में जो हाल हुआ है वहां पे, दिस इज नॉट टेररिज्म. दिस इज एक्चुअली अ वॉर अगेंस्ट ओनली हिंदूज. Right. इट इज ओनली ए वॉर अगेंस्ट हिंदूज. आपकी आईडी देख रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कलमा सुना दो, आपकी पेंट उतरवा रहे हैं, एंड ओनली दोज पीपल हैव बीन शॉट एंड रेस्ट फॉर नॉट. दिस इज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज, एंड दिस वॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड इज नॉट न्यू. इसी अफगानिस्तान से मार मार के हिंदुओं को निकाला, पाकिस्तान से निकाला, बांग्लादेश से निकाला, अब इस देश के अंदर मुर्शिदाबाद से, बंगाल से निकाल रहे हैं, वहां से भाग भाग के निकल रहे हैं, हिंदू निकल रहे हैं. और अभी जो कश्मीर में हुआ यही है. वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज सो कॉल्ड सेकुलर सिस्टम जो है, जिनकी समझ में नहीं आता है कि terrorism has no religion. Of course they have religion. Terrorism is equal to everybody, does everything. No, it is not equal. So we have to understand where we are. This is a clear war. This is not terrorism. This is a war against Hindus. So we need to understand what the whole thing is. Right. A part of the solution is to accept the problem as it is. True. It has, got a little intense, honestly, but it is as important, खासकर for the youngsters, to listen to this and to understand this, because next 10, 20, 30 years are ours, right? And it is on us कि हम अपनी कंट्री या अपना इन्वायरमेंट कैसा बनाना चाहते हैं, कैसी जगह में रहना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं. वी डोंट एक्ट फॉर इट. अगेन एज सर मैंशनड कि फिर हमें जो मिलेगा, जो हमारे साथ होगा, वील हैव टू एक्सेप्ट दैट अगर हम खुद एक्ट नहीं करेंगे. So thank you, sir, for putting that. And before we wrap this up, just to get it on a lighter note, and also because I love the title of the new book that you've launched, Live While You're Alive. I haven't read it already, but I will. I want you to share a little bit about that book, and also कुछ key highlights. Again, थोड़ा सा focused on the youngsters जो लोग अपने 20s, 30s में हैं, because our generation is actually very keen on having a meaning from life. And I think your book or your insights can help us find out that meaning or that path. तो हम कैसे उस path पे start कर सकते हैं, if you can share. बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, मीनिंगफुल लाइफ के लिए इंसान को दो चीज चाहिए. यू हैव टू हैव द राइट एटीट्यूड, एंड टू यू हैव टू हैव ए वैल्यू बेस्ड लाइफ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड मीनिंगफुल लाइफ कैसे होगा? See, you look for a purpose in life. What is your end purpose? In fact, what is a purpose? Most people talk purpose, but they can't even define the word purpose. What is purpose? How do you figure out what is my purpose in life? Purpose is a lifetime goal. A lifetime goal is called a purpose. Okay. How do you define your purpose? Right. And that is, supposing I was age 100 today, and if I was to look back at my life 100 years, what is it that I want to say is my accomplishment? That's my purpose. Okay. See, this is how you define, go backwards. So, meaningful तब होती है जिंदगी में when it is based on some values and goals, values. Can a person have unworthy goals, bad goals, rascal, nasty goals, evil goals? Yes. दाऊद भी तो बैठा है, अरबपति बना हुआ है वहां पर, तो पैसे बना रहा है, रोज बना रहा है, बट उसका मकसद कुछ और है. They are creating all kinds of problems everywhere. So हमारे अपने जो प्रोग्राम में है, in our 4-day leadership program, we do talk about money. And people say money is not important. I said, who says money is not important? I have written my book. The only people who say money is not important are either billionaires or stupid people. Right. Either they're stupid or they're billionaires. Now, I'm not saying money is the most important thing, but money is very important. Reason क्या है
कि I've learned one thing in my life, that money in good hands always does good and money in evil hands always does evil. तो मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूं और खास तौर पे लोगों को कहता हूं कि इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी गुड ह्यूमन बीइंग टू बिकम ए मल्टी मिलियनियर एंड ए बिलियनियर. It is the moral obligation of every good person to be a multi-millionaire and a billionaire. Why? Money in good hands always does good. Money in evil hands always does evil. That's it. I think that's the key message which I am taking with me, of course, and I'm sure that a lot of you also take with you. And sir ने obligation बना दिया है, so now everybody of you has to become multimillionaires and billionaires, because that's one way you can serve the community, you can serve humanity and your nation. So don't consider it as a selfish goal, consider it as a humanitarian goal, okay? And again, thank you so much, sir, that you've shared all these insiders, you've Thank you. shared all these stories, I would say, and very strong opinions which a lot of people are not able to put forth, that too so beautifully. So once again, आपने time निकाला, आपने हमारे साथ ये शो किया. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा. एंड if you have any other questions that you would like us to cover, put them in the comments. We'll try our best to answer them. Share this video with everybody, because this is going to help a lot of people open their eyes, open their mindsets, especially the youngsters in your family or your friend circle. Like and share and subscribe to the channel. Thanks for watching.